हेलो एवरीवन। तो आज हम साइकोलॉजी का क्लास चालू करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का पहले चैप्टर है व्हाट साइकोलॉजी। ठीक है, और इससे पहले हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट क्या थे, ट्रेंड क्या थे 20th में। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि देखिए ट्रेंड क्या है और साइकोलॉजी एंड द साइंटिफिक मेथड्स एंड साइकोलॉजी इन रिलेशन other social sciences and the natural sciences and application of psychology to the societal problems, है ना। तो इसमें देखो क्या है कि व्हाट इज साइकोलॉजी। देखो कोई भी नॉलेज जो है इज़ डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू डिफाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो इवॉल्व होती है कंटिन्यूसली। सेकेंडली बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज़ कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन। ठीक है, and this is even more true of psychology. Long time back, students like yourself were told कि term psychology is derived from the two Greek words psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject. Thus psychology was the study of the soul or mind. बट अब क्या हो गया, अब बदल गया है। बट सिंस देन इट हैज़ मूव्ड अवे कंसिडरेबली फ्रॉम दिस फोकस and it has established itself as a scientific discipline which deals with the process underlying human behavior and experience। ठीक है, तो पहला क्या है कि वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, और दूसरा जो रेंज ऑफ फिनोमेना ये पढ़ती है, द रेंज ऑफ फिनोमेना इट स्टडीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन। तो रेंज ऑफ फिनोमेना जो ये पढ़ती है कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन and it evolves continuously। ठीक है, and it is derived from the two Greek words psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject। तो psyche means the soul and the logos means the science or the study of the subject। तो इसलिए पहले कहा जाता था कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ द सोल और माइंड, बट अब क्या हो गया है, अब ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया है दैट इज़ डीलिंग विद द प्रोसेस अंडरलाइंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड experience। ठीक है, it has emerged as a scientific discipline which is dealing with the process, which deals with the process underlying the human experience and the behavior। The range of phenomena it studies some of which ना, तो अब दूसरी चीज़ ये कि range of phenomena it studies it has spread over the several levels, that is the individual, dyadic and the organizational। ठीक है, they also have biological as well as a social basis। Naturally, therefore, the methods which are required to study them also vary greatly depending on the phenomena one wants to study। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी कि it is dealing with the process which are underlying the human process and the human experience and the behavior। And secondly, the range of phenomena it studies it is at two levels, different levels, the individual, dyadic and the personal, group and the organizational। They have the biological and the social basis, and the methods which are required to study also greatly depending upon the phenomena one wants to study। A discipline is defined both in the terms of what it studies and how it studies। ठीक है, तो डिसिप्लिन को दो चीज़ों में डिफाइन किया था कि वो क्या पढ़ रहा है एंड हाउ इट स्टडीज़। In fact, more in terms of how or what methods it uses। Keeping this in view, psychology is defined formally as a science which studies the mental process, experience and the behavior in the different contexts। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा जाता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सोल माइंड। ठीक है, बट अब क्या कहा जाता है कि इट इज़ अ साइंस, it is a science which is studying the mental process, behavior and the experiences in the different contexts। ठीक है, and it is secondly it is using the methods of the biological and the social sciences to obtain the data systematically। it is using the methods of the biological and the social sciences to obtain the data systematically। जब वो डेटा आ जाता है तो उस डेटा को सेंस बनाती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है एज अ नॉलेज। ठीक है, टू मेक सेंस ऑफ द डेटा इट ऑर्गेनाइजेज इनटू द नॉलेज। ठीक है, अब देखो इस डेफिनेशन में हमने 3 टर्म्स पढ़े थे कि साइकोलॉजी सबसे पहले साइंस इट वाज द स्टडी ऑफ द सोल एंड द माइंड, एंड देन इट emerged as a scientific discipline which studies the experiences that are underlying the human experience and the behavior। ठीक है, and the range of phenomena it studies spread over the different levels of the individual, dyadic, personal, group and the organizational, and it has both the biological and the social basis, and the methods which are required to study it, ठीक है, they depends greatly on the phenomena one wants to study। ठीक है, a phenomena is defined both in the terms of what it studies and how it studies, in fact more in terms of how or which method it uses।
ठीक है। तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस दैट स्टडीज द मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंसेस इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इट यूजेस द मेथड्स ऑफ द बायोलॉजिकल एंड द सोशल साइंसेज to obtain the data systematically. It then organize that data so that some knowledge could be obtained. It makes some sense. ठीक है। So the three terms that we will study further are the mental process, behavior and the experiences in the different contexts. When we say experiences are internal to the experiencing person, then we refer to the state of consciousness or the awareness or the mental process. तो इसमें देखो क्या होता है कि देखो इसमें एक चीज़ है कि जब हम लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन, तो इसका मतलब क्या है? व्हेन वी से कि एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन, इसका मतलब क्या है कि एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन। तो इसमें वी आर रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और द मेंटल प्रोसेस। तो इसमें हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वी यूज़ अ मेंटल प्रोसेस व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, to know or remember something. One level at which this mental process is reflected in the brain activity. तो जब हम हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन में मतलब कुछ माइंड एक्टिविटी होती है, कुछ मेंटल प्रोसेस चलता है ना। दैट मेंटल प्रोसेस गोज इन द ब्रेन एक्टिविटी। एज वी थिंक और सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, द ब्रेन एक्टिविटीज़ जो है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द ब्रेन इमेजिंग। However, we cannot say that the brain activities and mental process are the same. मम्मी प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ या तो वहाँ बैठ जाओ, मुझे पढ़ना है। ठीक है। As we think or solve a mathematical problem, the brain activities can be observed using the different techniques of the brain imaging. However, we cannot say that the brain activities and mental process are the same, although they are interdependent. ठीक है। मम्मी थोड़ा अकेले ही बैठना दो, पढ़ना दो, याद कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता है। आप वहाँ वो रूम है, वहाँ कहीं बैठ जाओ, पढ़ते वक्त मत डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो वन लेवल एट विच दिस मेंटल प्रोसेस आर रिफ्लेक्टेड इज़ अ ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है। तो मेंटल प्रोसेस जो होता है वो रिफ्लेक्ट होते हैं ब्रेन एक्टिविटी में। एज वी थिंक और सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ब्रेन एक्टिविटीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मेंटल प्रोसेस होता है हमारी ब्रेन एक्टिविटी में। तो अब ये जो ब्रेन एक्टिविटीज़ में जो मेंटल प्रोसेसेस जो हैं दे कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द ब्रेन इमेजिंग। ठीक है। तो दिमाग में कुछ भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द ब्रेन इमेजिंग। However, we cannot say that the brain activities and the mental process same. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस जो है वो दोनों सेम है, क्योंकि देखो हम बहुत देर से दोनों वर्ड्स को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ मतलब क्या कहते हैं कुछ मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है ना। और वो मेंटल प्रोसेस दिखता किस में है, वो ब्रेन एक्टिविटी में दिखता है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटल प्रोसेस और ब्रेन एक्टिविटी दोनों एक ही चीज़ हो, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। बट हम उस मेंटल प्रोसेस को या है ना हम देख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द डिफरेंट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है। However, we cannot say कि brain activities and the mental process are the same, although they are interdependent. ठीक है। तो सेम नहीं है दोनों, पर दोनों बहुत ही interdependent है। The mental activities and the neural activities, mental activities को neural activities भी कह सकते हैं, they are mutually overlapping processes, but they are not identical. ठीक है। तो वो यही समझाना चाहता है कि जो ब्रेन एक्टिविटी होती है और जो आपका ये जो मेंटल प्रोसेस जो होता है ये दोनों जो हैं ओवरलैपिंग हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, बट ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट द सेम थिंग। अनलाइक द ब्रेन,
द माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और अ लोकेशन। अब देखो दूसरी चीज़ आती है कि माइंड और ब्रेन के बीच में क्या अंतर है। देखो ब्रेन का क्या है कि ब्रेन के पास एक स्पेस है, बट माइंड के पास कोई स्पेस नहीं है। माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज़ अ लोकेशन। द माइंड emerges and evolves as our interactions and experiences in the world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of the various mental process, है ना। तो वो ये समझाने की कोशिश करता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, हमारे जैसे इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे जैसे एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो माइंड है, देखो यहाँ थोड़ा वर्ड का हमें कॉशियसली यूज़ करना है कि जो हमारा माइंड है वो इवॉल्व होता है, वो इमर्ज होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, वो डायनेमिकली बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एंड जब वो माइंड एक सिस्टम के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रंस ऑफ द वेरियस मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। It is responsible for the occurrence of the various mental processes. Brain activities provide important clues as how our mind functions, ठीक है। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्लू देती हैं। जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमें मेंटल प्रोसेस देखने हैं कि ब्रेन एक्टिविटी में कैसे हो रहे हैं, तो हम लोग कुछ ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ है, नो, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दे बोथ आर ओवरलैपिंग, बट दे आर नॉट द सेम एंड दे आर नॉट द आइडेंटिकल, ठीक है। और ये मेंटल प्रोसेस आता कैसे है, ये माइंड से आता है कि माइंड जो है बहुत समय तक इमर्ज होता है, इवॉल्व होता है, फिर अपने आप को डायनेमिकली ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, अपने आप को डायनेमिकली ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ अ है ना, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रंस ऑफ द वेरियस मेंटल प्रोसेस। तो माइंड से बनता है मेंटल प्रोसेस, माइंड से बनता है मेंटल प्रोसेस, और फिर वो मेंटल प्रोसेस से बनता है, ठीक है, माइंड से बनता है मेंटल प्रोसेस, और फिर वो, हाँ, मेंटल प्रोसेस। फिर दूसरी चीज़ ये थी, मैंने ये पढ़ी थी कि माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज़ अ लोकेशन, ठीक है। और ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमें क्लू प्रोवाइड करती हैं। दे गिव अस द इम्पॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ द माइंड फंक्शंस, ठीक है। दे गिव अस द इम्पॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस, ठीक है। ये हमें क्लू देती हैं कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे कर रहा है। बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड द मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर देन द न्यूरल और द ब्रेन एक्टिविटीज़। तो फिर वो हमें ये समझाना चाहता है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द न्यूरल और या द ब्रेन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो यही चीज़ समझाने की हमें बहुत कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस हमें यहाँ समझना है कि मतलब जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन एक्टिविटी में कुछ मेंटल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और वो मेंटल प्रोसेस बना कैसे, ये हमने बताया कि वो समय के साथ साथ माइंड जो है इवॉल्व होता है, इमर्ज करता है, अपने आप को डायनेमिकली ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी वजह से मेंटल प्रोसेस होता है। फिर वो मेंटल प्रोसेस जब दिमाग में चल रहा होता है हमारी ब्रेन एक्टिविटी में, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो हमें क्लू देती है कि हाउ द माइंड एक्चुअली वर्क्स और व्हाट काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ एक लिखने में आई थी कि जो कॉन्शियसनेस है, बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड द मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर देन द न्यूरल और द ब्रेन एक्टिविटीज़। बट जो कॉन्शियसनेस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है than the neural or the brain activities. Even when we are asleep, some mental activities go on. We dream, we receive some information such as a knock on the door while we are asleep. ठीक है, तो ये है ना, तो ये है क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मच मोर देन द न्यूरल और ब्रेन एक्टिविटीज़। क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी हमें सपने आते हैं। जब हम सोते हैं तो दरवाजे पे कोई खटखटाता है तो हमें पता चलता है, ठीक है, नॉक ऑन द डोर व्हाइल वी आर अस्लीप। सम साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट वी ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर इन अस्लीप, ठीक है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी ये भी कहते हैं कि वी लर्न एंड रिमेंबर ऑल्सो इन आर स्लीप। मेंटल प्रोसेस सच एज अ रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग आर ऑफ इंटरेस्ट टू द साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो मेंटल प्रोसेस हैं हमारे, कि हम फील करते हैं, नो करते हैं, परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं,
These are of great interest to psychologists. They study these processes to try to understand how the mind works and help us improve the uses and the applications of the mental capacities. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, ठीक है, और इनके बारे में खूब पढ़ते हैं। फिर इससे क्या होता है कि बेटर एप्लीकेशंस निकलती हैं ऑफ द मेंटल प्रोसेस, ऑफ द मेंटल कैपेसिटीज़, एंड हमें एक बहुत बेटर नॉलेज मिलती है कि ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स। ओके, इट गिव्स अ वेरी गुड नॉलेज कि हाउ द माइंड वर्क्स एंड the applications of these mental capacities. Psychologists also study experiences of the people, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, देखो सबसे पहले चीज़ हमने बताई कि मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दे स्टडी अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस, जिससे कि उन्हें माइंड के बारे में पता चलता है, मेंटल कैपेसिटीज़ के बारे में पता चलता है, और दूसरी चीज़ जो वो लोग पढ़ते हैं वो है एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, देखो यार, वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्स एक्सपीरियंस। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं आपका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूं, ऑब्जर्व करूं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जिसके साथ हो रहा है, जिसके साथ बीत रहा है, ओनली ही और शी इज़ अवेयर और कॉन्शियस, सो ओनली ही और शी कैन नो, ठीक है। दस एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस और द कॉन्शियसनेस। इससे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, है ना। दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर एंड दे आर एम्बेडेड इन आर ओन अवेयरनेस एंड द कॉन्शियसनेस। The psychologists have focused on the experience of the pain being experienced by terminally ill patients or of psychological pain felt in the bereavement, besides experiences which leads to positive feelings such as in romantic encounters. There are some historic experiences also which attract the attention of psychology. अब देखो जैसे बहुत सारे experiences होते हैं, जैसे कि सर्जरी के टाइम में जो पेन हो रहा है, या कोई रोमांटिक जेस्चर्स हो रहे हैं, यू नो, अ योगी जो कि बिल्कुल डीप मेडिटेशन में है, एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड क्रिएटिंग अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और व्हेन अ ड्रग एडिक्ट takes a particular kind of a drug to get a high, even though such drugs are extremely harmful. Experiences are influenced by the internal and the external conditions of the experiencer, ठीक है। अब देखो यार, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि यार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द इन्फ्लुएंसर। If you're traveling in a crowded bus during a hot summer day, ठीक है, you may not experience the usual discomfort if you are going for a picnic with some close friends, है ना। तो अगर आप किसी नॉर्मल डे में गर्म दिन में जा रहे हो तो बड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, बट अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हो तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस, जो आपका एक्सपीरियंस है इज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर। Thus, the nature of the experience can only be understood by analyzing a complex set of internal external conditions. तो अगर आपको एक्सपीरियंस के बारे में समझना है, if you want to study the nature of the experience, you can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions. बिहेवियर क्या होता है? अब देखो दूसरी चीज़ें, बिहेवियर्स आर द रिस्पॉन्सेज और द रिएक्शंस वी मेक और द एक्टिविटीज़ वी इंगेज, है ना। बिहेवियर होता है कि हम जो रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं टू द एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन। व्हेन समथिंग इज़ हर्ल्ड एट यू, योर आईज ब्लिंक इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड यू कैन फील योर हार्ट पाउंडिंग, यू डिसाइड टू गो फॉर अ पर्टिकुलर मूवी विद अ फ्रेंड। तो बिहेवियर्स में भी सिंपल, तो बिहेवियर्स क्या है कि अदर इंगेजमेंट्स और द रिस्पॉन्सेज रिएक्शंस टू द एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन, जैसे कि हार्ट पाउंड्स, आइज ब्लिंक इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। बिहेवियर्स में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट एंड्यूरिंग, सम आर ओवर्ड, ठीक है। दे कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस बाय एन ऑब्जर्वर, सम आर इंटरनल कोवर्ट। तो बिहेवियर्स इंटरनल हो सकते हैं, ओवर्ट हो सकते हैं, है ना, ओवर्ट हो सकते हैं, कोवर्ट हो सकते हैं। दे कैन बी सिंपल, दे कैन बी कॉम्प्लेक्स, दे कैन बी शॉर्ट, एंड्यूरिंग। When you are in difficult situation while playing a game of chance, you almost feel your hand muscles twitching, try to experiment with a move. All the behaviors, covert or overt, are associated with or triggered by some stimulus in the environment
और चेंज दैट हैपन्स इंटरनली, ठीक है। तो जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो एक स्टिमुलस की वजह से हुए हैं, ठीक है। कि जैसे कि मम्मी ने मुझे बुलाया, मम्मी ने मुझ पर डांटा तो मैंने उन पर चिल्ला दिया, तो ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला मुझे जो कि ट्रिगर हुआ इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। या तो मैं खूब है ना रो रही हूँ क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द क्या है, एक अंदर का इंटरनल स्टिमुलस है जो कि ट्रिगर हुआ है। तो वो यही समझाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, ओवर्ट हो या कोवर्ट हो, ठीक है, दे आर ट्रिगर्ड बाय सम स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है, दैट हैपन्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि आप टाइगर देखते हो एंड यू रन और थिंक दैट देयर इज़ अ टाइगर एंड डिसाइड टू फ्ली, एंड सम साइकोलॉजिस्ट इवन स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन, ठीक है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है, दे स्टडी द बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो बिहेवियर को एज अ एसोसिएशन पढ़ा जाता है बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, और दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा टॉपिक आता है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो हमने पहले चीज़ क्या पढ़ी साइकोलॉजी में, कि साइकोलॉजी जो है सबसे पहले इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सोल एंड द माइंड, ठीक है। फिर बाद में वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुई, जिसमें वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स विच आर अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द behavior. The range of phenomena it studies can be at different levels, the individual, dyadic and group organization. They have the social and the biological basis, and the methods which are required, they depends upon the phenomena one wants to study and in the context in which they want to study, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंस दैट स्टडीज़ द मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंसेस इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी मैंने बताया कि मेंटल प्रोसेस में क्या होता है। मेंटल प्रोसेस में क्या है कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम एक मेंटल प्रोसेस होता है दिमाग में, जो कि ब्रेन एक्टिविटी में होता है, ठीक है। अब देखो वो मेंटल प्रोसेस जो हो रहा है ब्रेन एक्टिविटी में, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। बट ब्रेन एक्टिविटीज़ और मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो दोनों सेम नहीं होता, क्योंकि देखो जैसे माइंड और ब्रेन है, ब्रेन का एक स्पेस है, माइंड का कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। माइंड क्या है, समय के साथ हमारे जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं और है ना, वैसे वैसे वो इवॉल्व होता है और फिर वो एक मेंटल प्रोसेस बनाता है, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द वेरियस मेंटल प्रोसेस। बट हमारा जो मेंटल प्रोसेस जो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लूज एज हाउ अ माइंड फंक्शंस, ठीक है। तो वो यही समझाना चाहता है कि मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं एंड द न्यूरल एक्टिविटीज़, दे आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। The mental and the neural activities are mutually overlapping process, but they are not identical. Brain activities provide important clues as to how our mind functions. फिर ये कहता है कि the consciousness of our own experiences is far greater than the neural or brain activities, ठीक है। क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी हम देखो सोते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, हमें नॉक डोर सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेंटल प्रोसेस पढ़ते हैं, उससे उन्हें क्या होता है कि उन्हें मेंटल कैपेसिटीज़ के बारे में पता चलता है एंड हाउ द माइंड वर्क्स। दूसरी चीज़ है कि वे स्टडी अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट आर सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जिस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो उसी एक्सपीरियंस को अच्छे से जानता है, तो इसलिए कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो होता है, दे आर एम्बेडेड इन आवर ओन अवेयरनेस और द कॉन्शियसनेस, द एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जैसे कि दर्द महसूस होना, ठीक है, रोमांटिक जेस्चर्स, योगी मेडिटेटिंग, एंटरिंग इनटू अ न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रग एडिक्ट्स। अब जो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, दे आर ट्रिगर्ड, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर, ठीक है। जैसे कि मैं पिकनिक गई गर्म दिन में,
तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगेगा, बट अगर मैं नॉर्मली अगर ऐसी गर्मी में बाहर जाऊँगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए अगर किसी एक्सपीरियंस को समझना है देन यू हैव टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कंडीशंस, बिकॉज एक्सपीरियंस जो होता है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर। फिर तीसरी चीज़ जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं वो है बिहेवियर। ठीक है, अब देखो बिहेवियर क्या होता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है टू द एक्टिविटीज़ वी इंगेज हैं, जैसे कि हमारी आइज़ ब्लिंक होती है सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में, हम टाइगर देखते हैं भाग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बिहेवियर हम देते हैं इट इज़ ट्रिगर्ड बाय सम स्टिमुलस विच मे बी ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, विच इज़ ट्रिगरिंग इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, that some happen internally. So it is an association of the stimulus and the response, and both of them can be internal or the external. ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो दूसरा टॉपिक आता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब बहुत डिबेट चलती है इस पर कि यार ये सोशल साइंस है या ये बायोलॉजिकल साइंस है या ये कोग्निटिव साइंस है, मतलब ये है क्या, बहुत डिबेट चलती है। ठीक है, बट अभी हम लोग शुरुआत में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी जो है 3 चीज़ें पढ़ती है। अब डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो मेंटल प्रोसेस पढ़ती है, बिहेवियर पढ़ती है, एक्सपीरियंस पढ़ती है ना। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट्स इन डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, और वो ये पढ़ती है कि कैसे मेंटल प्रोसेस जो है वो बिहेवियर में रिजल्ट करती है। When we observe others as a lay or the common persons, our own point of views or our own ways of understanding the world influence our interpretations of their behaviors and experience। ठीक है, वो यहाँ ये कहना चाहता है कि जब हम किसी दूसरे लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनका जो जजमेंट हम जो निकालते हैं, जो इंटरप्रिटेशन हम जो निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायस्ड होता है। वो बायस्ड क्यों होता है? वो सब्जेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी खुद की थिंकिंग भी उसमें एम्बेड हो जाती है। ठीक है, हाँ, हमारे ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन्फ्लुएंस। तो साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस वे, एंड हाउ दे डू इट, हाउ यू रिमूव दैट बायसनेस बाय मेकिंग द एनालिसिस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना है कि वो बायसनेस हटानी है, तो यू मेक योर एनालिसिस वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी साइंटिफिक। ठीक है, और बाकी कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो बिहेवियर जो भी मतलब वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द एक्सपीरियंस इन पर्सन, बिकॉज दे थिंक, क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनका ये मानना है कि सब्जेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, सब्जेक्टिविटी इज़ अ नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। In the Indian tradition, self-reflection and analysis of our conscious experience is held to be a major source of psychological understanding। ठीक है, और इंडियन उसमें क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि आपका खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन और आपका एनालिसिस ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को बहुत एम्फसाइज करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, द सेल्फ नॉलेज, द एनालिसिस ऑफ आवर ओन सेल्फ, ऑफ आवर ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। बट सब यही कोशिश करते हैं कि यू एक्सप्लेन दैम इन अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज मैनर, इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड द वेरीफाइबल मैनर। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड वेरीफाइबल मैनर में इम्पॉर्टेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन दैम इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरीफाइबल मैनर। साइकोलॉजी दो इट इज़ अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन इज़ अ यंग साइंस। ठीक है, तो साइकोलॉजी एक बहुत ही यंग साइंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी पहली लेबोरेटरी जो थी वो फाउंड हुई थी इन द 1879 इन द लाइप्जिग विच इज़ इन जर्मनी बाय द विलियम वुंडेट ने किया था। बट ये यंग साइंस तो है, हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ यंग साइंस, बट व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज़, ठीक है, ये अभी भी मैटर ऑफ डिबेट है।
वाई? बिकॉज ऑफ द न्यू इंटरफेसेस इट हैज़ इमर्ज इन द रिसेंट टाइम्स। ठीक है, एक नए समय में अभी बहुत सारे इंटरफेसेस जो हैं वो इमर्ज हुए हैं। साइकोलॉजी इज़ जनरली कैटेगराइज एज अ सोशल साइंस। ठीक है, उसको नॉर्मली कहा जाता है कि सोशल साइंस है, बट यार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी BSc MSc और साइंस डिग्री भी दी जाती है। इन द फैकल्टी ऑफ द साइंस ऑल्सो इट इज़ ऑफर्ड। ठीक है, और अभी एक बहुत सारे इमर्जिंग डिसिप्लिन्स भी निकल रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोग्निटिव न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस। ठीक है, सम ऑफ अस वुड बी अवेयर ऑफ द फास्ट डेवलपिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI, EEG। ठीक है, विच मेक इट पॉसिबल टू स्टडी द ब्रेन प्रोसेस इन द रेडी टाइम, दैट इज़ व्हेन दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस। तो EEG और MRI से क्या होता है कि हम ब्रेन प्रोसेसिंग जो होता है, वी आर एबल टू स्टडी द ब्रेन प्रोसेसिंग इन द रेडीमेड टाइम, मतलब एट द टाइम व्हेन दे आर एक्चुअली हैपनिंग। और IT एरियाज़ में ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट पॉसिबली ग्रो विदाउट द नॉलेज ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, विदाउट द साइकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द कोग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ नहीं सकते अनलेस यू हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, और ये न्यूरो साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, MRI, EEG, तो ये बहुत नए नए साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं। तो आप इसे सोशल साइंस भी नहीं कह सकते, आप इसे क्या कहते हैं, इसे प्रॉपर साइंस भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके मतलब दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं जो कभी कभी कन्वर्ज हो जाते हैं ओनली टू डाइवर्ट लेटर। ठीक है, देखो देखो अगर हम इसे एक प्रॉपर साइंस से देखा जाए तो इट यूजेस द मेथड्स ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, और अगर हम इसे एक सोशल साइंस किए जाए तो इट मेक्स द यूज़ ऑफ द social and cultural sciences, methods of social cultural sciences in studying various psychological and social phenomena. They converge only to drift apart and go their separate ways. In the first case, psychology consists of a discipline which focuses largely on biological principles to explain the human behavior. ठीक है, जब हम इसे एक साइंस की तरह लेते हैं, ठीक है, तो साइंस में क्या होता है कि जैसे कि आंखें ब्लिंक कर रही हैं तो हम उसका पूरा अंदर का एनाटॉमी और वो सब पढ़ने लग जाते हैं। तो वो हमें यही समझाना चाहता है कि अगर हम इसे साइंस की तरह लें तो इट यूजेस द बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इट यूजेस द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इट अज्यूम्स कि दैट एनी बिहेवियरल फिनोमेना हैव कॉजेस विच कैन बी डिस्कवर्ड इफ वी कैन कलेक्ट डेटा systematically under control conditions. Here the aim of the researcher is to know the cause and effect relationship so that the prediction of the behavioral phenomena can be made and behavior can be controlled if need be. तो यहाँ वो ये सोचते हैं कि कोई अगर बिहेवियर आ रहा है किसी पर्टिकुलर उसका, तो आप उसको रिकॉर्ड करते रहो। जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे सिस्टमेटिकली तो फिर आपको एक कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पता चल जाएगी। जब आपको कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पता चल जाएगी तो आप आगे जाके उसे कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, आप कंट्रोल कैसे करोगे, आप उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे, फिर आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, आपको कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पता चल जाएगी। सोशल साइंस में क्या होता है, जब अगर साइकोलॉजी अगर अपने आप को सोशल साइंस अगर मानने लगी तो इट फोकस ऑन द how behavioral phenomena can be explained in the terms of interactions that takes place between the person and the socio-cultural context of which he or she is part. क्योंकि सोशल साइंस में क्या होता है ना कि वो ऐसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर कोई बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन द पर्सन एंड द काइंड ऑफ सोशल कंटेक्स्ट ऑफ विच ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ। ठीक है, और बायोलॉजिकली साइंस अगर लेता है तो उसमें वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यार बंदे ने हाथ इसलिए हटा लिया गरम पत्थर से क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थे, फिर उससे उसे कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पता चल गई। तो फिर वो क्या करता है, जब कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन उसने डाटा रिकॉर्ड कर लिया वैसा, फिर उसने कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप निकाल ली, फिर उसने प्रेडिक्ट कर लिया, फिर उसने कंट्रोल कर लिया। और सोशल साइंस में क्या होता है कि बंदा रोया, उसकी माँ ने उसे मारा, बंदा क्यों रो रहा है क्योंकि उस बंदे का और उसकी माँ का जो इंटरेक्शन है, जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो बिहेवियरल फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड एज अ इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द काइंड ऑफ सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एट विच ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ। ठीक है,
और जो भी बिहेवियरल फिनोमेना जो होता है, मतलब बच्चा रो रहा है या बच्चा मतलब बड़ा स्टबन बिहेव कर रहा है, एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, उसके बहुत ही मल्टीपल फिनोमेना, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, तो ये एज अ डिसिप्लिन मैंने समझा दिया। तो पहली चीज़ हमने यही पढ़ी कि मतलब वो मतलब मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं, और जब हम किसी के एक्सपीरियंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना, तो मतलब हमारा थोड़ा बायसनेस आ जाता है। तो बायसनेस को रिमूव करने के लिए हम उसे सिस्टमैटिक, वेरीफाइबल और ऑब्जेक्टिवली मतलब कोशिश करते हैं, एनालिसिस साइंटिफिक बनाते हैं, है ना। एंड कभी कभी हम उसका भी मतलब वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब सब्जेक्टिविटी इज़ अ नेसेसरी एस्पेक्ट, और इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनालिसिस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फिर हम इसे यंग साइंस कहते हैं। यंग साइंस तो है, चलो ठीक है, बट व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज़, या तो सोशल साइंस है या तो नेचुरल साइंस है, किस तरीके से है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जैसे सबसे पहले साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में मैंने बताया कि जैसे अगर कोई बिहेवियर एक्सप्लेन करना होता है तो उसके बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम लोग हकदार बना देते हैं, कहते हैं कि यार ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल था जिसकी वजह से ऐसा ह्यूमन बिहेवियर हुआ है। फिर वो ऐसा डाटा रिकॉर्ड करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं, फिर उसको प्रोडिक्ट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं। It has been mentioned earlier that psychology has its roots in philosophy. However, modern psychology has developed because of application of the scientific method to study the psychological phenomena. ठीक है, अब इसको यार नेचुरल साइंस में क्यों डेवलप किया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन है ऑफ द साइंटिफिक मेथड। द साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी विच कैन बी obtained even if there is a consensus on the definition of a concept and how it can be measured। ठीक है, तो जब हम जब साइकोलॉजी को एक नेचुरल साइंस कहते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत फोकस आता है। Psychology was influenced by Descartes. It was influenced by Descartes and later on by the development in physics। ठीक है, has grown by following what is called the hypothetical deductive model। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस में यार देखो वो ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत फोकस करता है। ऑब्जेक्टिविटी के लिए फिर देखो जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिस्कार्टिस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे। डिस्कार्टिस एक साइंटिस्ट थे उस समय, और दूसरे उस समय फिज़िक्स से बहुत प्रभावित हुए थे। फिर उसके बाद आया था हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ठीक है, तो वो इतने प्रभावित हुए थे फिज़िक्स से, और ये डिस्कार्टिस एक साइंटिस्ट है कि उन्होंने एक ठीक है तो फिर एक मॉडल आया हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ठीक है, hypothetical deductive model. This model suggests that the scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomena। ठीक है, for example physicists have what is called a Big Bang theory to explain the how the universe came to be formed। ठीक है, तो वो यही कहते हैं hypothetical deductive model में, ये कहते हैं कि किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए एक थ्योरी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस। अब यार इस लाइन का मतलब क्या है कि मतलब अगर आपके पास कोई थ्योरी है टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना द साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस। इसका क्या मतलब है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म्ड। ठीक, अब देखो थ्योरी है क्या यार, ये theory is nothing but a set of statements about how a certain complex phenomena can be explained with the help of propositions which are interrelated। ठीक है, तो थ्योरी है क्या, थ्योरी एक कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक अबाउट अ सर्टन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना that can be explained with the help of prepositions। you can explain it with the help of prepositions, और वो interrelated होता है। based on a theory the scientists deduce और propose a hypothesis। तो सबसे पहले वो एक थ्योरी बनाते हैं, फिर थ्योरी से उसमें से वो लोग हाइपोथेसिस को डिड्यूस करते हैं, that offers a tentative explanation of how a certain phenomena takes place। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो होता है, हाइपोथेसिस मतलब एक बहुत ही टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है of how a phenomena takes place। the phenomena
द फिनोमिना देन इट्स टेस्टेड एंड प्रूव ट्रू और फॉल्स। अब फिनोमिना को आप टेस्ट करोगे, अगर वो ट्रू निकला या फॉल्स निकला, ठीक है, इट इज़ टेस्टेड एंड देन इट इज़ प्रूव ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल डेटा दैट वन हैज़ गैदर्ड। तो ट्रू निकल गया तो वो भी एम्पेरिकल डेटा पे होगा, फॉल्स निकला तो वो भी एम्पेरिकल डेटा पे होगा, ठीक है। द थ्योरी इज़ रिवाइज्ड इफ़ द डेटा गैदर्ड पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन द वन सजेस्टेड बाय द हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जैसे कि सपोज़ अगर थ्योरी को रिवाइज़ कब करोगे आप, थ्योरी को रिवाइज़ जब करते हो जब आपने कुछ और सोचा था पर डेटा किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। द थ्योरी इज़ रिवाइज्ड इफ़ द डेटा गैदर्ड पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि अगर आपने कहा कि शाम जो है नॉर्थ में चलता है, बट जो डेटा आपने निकाला उससे ये निकला कि यार शाम तो एक्चुअली साउथ में जा रहा है, तो फिर आप अपनी थ्योरी को रिवाइज़ करोगे कि नहीं करोगे कि यार एक्चुअली में शाम जो है वो साउथ में जा रहा है क्योंकि मैंने ऐसा डेटा निकाला और डेटा से ऐसा प्रूव निकला, मतलब मेरा हाइपोथेसिस गलत निकला, ठीक है। तो थ्योरी इज़ रिवाइज्ड if the data you have gathered is pointing in a different direction as the one that was suggested by the hypothesis. Using the above approach, psychologists have developed the theories। और यही हाइपोथेटिकल रिडक्टिव मॉडल यूज़ करके इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ बना ली। थ्योरीज से ये लोग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट करते रहते हैं। जैसे कि हर दिन देखो एक लर्निंग थ्योरी है, मेमोरी थ्योरी है, इंटेलिजेंस थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरी है, तो उससे फिर वो एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसमें समय के साथ साथ उसमें एडवांसमेंट करते रहते हैं। जैसे कि there is a theory of the learning, memory, attention, perception, motivation, emotion, etc. have made significant progress. Till date, most of the research in psychology follows this approach. Apart from this, psychologists have also been considerably influenced by the evolutionary approach, which is dominant in the biological sciences, ठीक है। तो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि यह साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई बाय द डिस्कार्टिस, बाय द एडवांसमेंट इन द फिज़िक्स एंड बाय द एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच कहाँ होता है? एवोल्यूशनरी अप्रोच जो होता है वो बायोलॉजिकल साइंसेस में होता है। बायोलॉजिकल साइंसेस में कि आइज़ ब्लिंक कर रही है तो उसके पीछे एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो एवोल्यूशनरी अप्रोच विच इज़ डोमिनेंट इन बायोलॉजिकल साइंसेस एंड दिस अप्रोच हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू एक्सप्लेन डाइवर्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना सच एज अटैचमेंट एंड एग्रेशन, टू मेंशन जस्ट अ फ्यू, ठीक है। और इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन की हैं, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इट इज़ यूज फॉर एक्सप्लेनिंग वेरियस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जैसे अटैचमेंट क्यों हो गया इतना, इसमें भी कोई एक केमिकल हार्मोन को जनरेट होता है, डोपामीन जिसे कहते हैं। एग्रेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, और आप अटैच क्यों हो रहे हो, मतलब एक बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। तो ये है, तो एज अ नेचुरल साइंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया जाता है एंड, ठीक है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्कार्टिस, बाय द फिज़िक्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द एवोल्यूशनरी अप्रोच जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है इन द बायोलॉजिकल साइंसेस, used for explaining various psychological phenomena like the attachment, aggression, the hypothetical model में ये है कि कोई थ्योरी बना लो इससे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट करते रहो। जैसे मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, इमोशन थ्योरी हो गई, ठीक है। थ्योरी क्या है? थ्योरी एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्टेटमेंट which can be explained with the help of propositions which are interrelated. थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है? हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ सर्टेन फिनोमेना टेक्स प्लेस, ठीक है। थ्योरी अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ फिनोमेना टेक्स प्लेस, फिर उसको टेस्ट करोगे, ट्रू और फॉल्स निकलेगा, ठीक है। और अगर तुमने ये हाइपोथेसिस बनाया कि शाम नॉर्थ में जा रहा है, पर जो डेटा निकाला उससे ये पता चला है कि वो साउथ में जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल रिवाइज योर थ्योरी। तो थ्योरी वुड बी रिवाइज्ड if the data gathered is pointing in a different direction as the one which was concluded by the hypothesis, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। जब हम इसे एक सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से लेते हैं, we mentioned above that psychology is recognized more as a social science because it studies the behavior of the human being in their social। अब देखो सोशल साइंस में मैंने अभी शुरुआत में बोल लिया था कि जैसे कि अगर कोई बच्चा रो रहा है या अगर कोई बच्चा बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, तो
वो समझाया कैसे जाता है. इट इज़ एक्सप्लेन्ड एज अ इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द काइंड ऑफ सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ विच ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ. ठीक है. तो ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, दे ऑल्सो क्रिएट देम. मतलब उनका कहना है कि हम ना सिर्फ प्रभावित होते हैं, बल्कि कहते नहीं है कि हम सिर्फ समाज का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हम उस समाज को बनाते भी हैं. वी क्रिएट देम एज वेल. द साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन द ह्यूमन एज अ सोशल बींग्स. तो यहाँ हम एक इंसान को एक सोशल बींग की तरह मानते हैं. ठीक है. वी फोकस ऑन द ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग. ठीक है. जैसे रंजिता शबनम का एग्जांपल ले लो. जैसे जैसे क्या होता है कि जब बहुत क्राइसिस हो रहा है तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, कुछ लोग आपकी मदद नहीं करेंगे. ठीक है. देखो जैसे यहाँ है कि इन द केस ऑफ रंजिता एंड शबनम, ठीक है, दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं और दोनों की डिफरेंट फैमिलीज़ हैं. एक बहुत ही अमीर है, एक बहुत ही गरीब है, और अंडर कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल कंडीशंस. You can see some regularity in their relationship of nature, experience and mental process with their social physical environment, but at the same time there are variations in their behavior experiences that would be difficult to predict using the known psychological principles. मतलब वो यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि दो अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग सेटिंग है, कुछ रेगुलरिटीज़ दिख रही हैं उनके बिहेवियर में, मेंटल प्रोसेस में, बट कुछ इरेगुलरिटीज़ भी दिख रही हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं टू कंट्रोल एंड टू प्रोडिक्ट यूजिंग द नोन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. One can understand why and how the individuals and communities become quite helpful and self-sacrificing in crisis, as was the case with the people in the village of Ranjita Shabnam. But even in that case, not every villager was equally helpful, and also under similar circumstances, not every community is so forthcoming. In fact, कभी कभी तो उल्टा होता है. People become anti-social, looting. ठीक है, looting, exploitation, and this shows that psychology deals with the human behavior and experience in the context of the society and the culture. Thus psychology as a social science which focus on the individuals and communities in relation to the socio-cultural and physical environment. तो यहाँ हम इंसान के साथ साथ, मतलब ह्यूमन बीइंग को है उसको सोशल बीइंग कहा जाता है. ठीक है. और हम इंसान के साथ साथ भी फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स और भी फोकस ऑन द कम्युनिटीज़ इन रिलेशन टू द सोशो कल्चर एंड एज वेल एज फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है. ये हो गया. अब देखो एक नया टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. ठीक है. माइंड और बिहेवियर को क्या पढ़ना है. पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी. Evolution of psychology is another topic. The development of psychology in India. Branches of psychology. Themes, basic versus applied psychology and other disciplines. Understanding mind and behavior. अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ माइंड और बिहेवियर को पढ़ने की, समझने की हम कोशिश करते हैं. देखो यू विल रिकॉल कि साइकोलॉजी वाज वंस डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ द माइंड एंड सोल. हम कहते थे ना कि पहले साइकोलॉजी मतलब पढ़ाई हुआ करती थी ऑफ द माइंड एंड द सोल, यही था. हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं. इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सोल और द माइंड, है ना. फॉर मैनी डिकेड्स द माइंड because it could not be defined in the concrete behavioral terms or its location could not be indicated. In the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists. तो पहले क्या होता था कि हम कहते थे कि यार साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है सोल की, माइंड की. ठीक है. बट माइंड बहुत समय तक एक टैबू में रहा. क्यों रहा टैबू में? क्योंकि हम इसको प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं कर पाते थे. ना हम इसके लोकेशन को ट्रेस कर पाते थे, ना हम इसको बिहेवियरल टर्म्स में डिफ़ाइन कर पाते थे. we were not able to define in the concrete behavioral terms, nor we were able to trace its location. ठीक है.
तो अब रिसेंटली यार देखो, अब आपने बहुत सुना होगा न्यूरो साइंस, बहुत माइंड की बातें करते हैं कि माइंड ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? वी शुड थैंक टू न्यूरो साइंटिस्ट लाइक द स्पेरी एंड फिजिशिस्ट लाइक द पेंट्रोस। फिजिशिस्ट पता है क्या होता है? फिजिशिस्ट वो होते हैं जिनकी फिजिक्स में बहुत एक्सपर्टीज होती है, पेंट्रोस एंड न्यूरो साइंटिस्ट लाइक स्पेरी, who have given it the respect which it deserves and now has. There are scientists in various disciplines, including psychology, who think that the unified theory of the mind is a possibility, although it still is far away. तो ये unified theory of mind जो है, ठीक है, ये अभी still in process है. Unified theory of mind still in process, ठीक है. अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है, what is mind? Is it the same as brain? इट इज़ ट्रू कि माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, बट माइंड एज अ सेपरेट एंटिटी. हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि माइंड और ब्रेन जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं. यहाँ दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर ओवरलैपिंग, बट दे आर नॉट द सेम एंड दे आर नॉट द आइडेंटिकल. This can be appreciated on the account of several interesting cases that have been documented. Some patients, अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है. कुछ पेशेंट्स थे जिनके ऑसिपिटल लोब्स को रिमूव कर दिया गया था. ऑसिपिटल लोब्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ठीक है. दे वर सर्जिकली रिमूव्ड एंड बट दे वर फाउंड टू बी रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू द लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विजुअल क्यूज़, ठीक है. इसी तरीके से एक एथलीट था, द वन दैट लॉस्ट हिज आर्म इन द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, बट ही कंटिन्यू टू फील हिज फैंटम आर्म, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू फील इट्स मूवमेंट, है ना. एंड व्हेन ऑफर्ड कॉफ़ी, द फैंटम आर्म जो है इट रीच्ड आउट टू द कॉफ़ी कप एंड व्हेन समवन पुल्ड इट अवे ही प्रोटेस्टेड. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं डॉक्यूमेंटेड बाय द न्यूरो साइंटिस्ट. अ यंग मैन जो हु सफर्ड द ब्रेन इंजरी इन एन एक्सीडेंट एंड आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल ही क्लेम्ड कि उसके जो पेरेंट्स हैं दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द डुप्लीकेट्स एंड दे वर इम्पोस्टर्स, ठीक है. तो इन सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, द पीपल हैव सफर्ड सम काइंड ऑफ अ डैमेज पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट जो माइंड है दैट हैज़ रिमेन इंटैक्ट. तो भले ही ब्रेन डैमेज हो गया है बट माइंड जो है, माइंड हैड रिमेन्ड इंटैक्ट. इट वॉज अर्लियर बिलीव बाय द सेंटर्स दैट देयर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड ब्रेन. तो पहले कहा जाता था कि कोई रिलेशनशिप नहीं है माइंड और ब्रेन के बीच में, ठीक है, ऐसा पहले माना जाता था. बट एंड दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों पैरेलल हैं. बट अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं इन द न्यूरो साइंस दैट हैव क्लियरली शोन कि देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बिहेवियर. इट हैज़ बीन शोन दैट अब, और ऐसा कहा जाता है कि यूजिंग द अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस, वन कैन ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द बॉडी प्रोसेस, ठीक है. अब ये किसने किया था? ऑर्निश ने प्रूव किया था, हैज़ शोन इन द नंबर ऑफ स्टडीज़ विद दिस पेशेंट्स. जैसे एक बंदा था, ठीक है, विद द ब्लॉक्ड आर्टरीज, तो उसको वो विजुलाइज कराता था कि योर ब्लड इज़ फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज. तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, significant relief was obtained by these patients as the degree of blocking became significantly less. The use of mental imagery, that is the images generated by the person is her mind, have been used to cure various kind of phobias. तो mental imagery भी use करते हैं to treat phobias. फोबिया होता है कि मतलब यू हैव अ इर्रैशनल, मतलब देखो रैशनल होता है जो समझा जाता है, इर्रैशनल मतलब जो बिना फालतू का डर, कि पानी से डर लग रहा है, तो इट इज़ अ इर्रैशनल ना, इट इज़ अ इर्रैशनल फियर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन. फिर एक नया डिसिप्लिन आया जिसे कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, दैट हैज़ इमर्ज दैट एम्फसाइज ऑन द रोल विच इज़ प्लेड बाय द माइंड इन स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन सिस्टम. तो इसी तरीके से साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आया. साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ योर माइंड यू कैन स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, ठीक है. फिर एक नया टॉपिक आता है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. वी मैंशनड अबाउट दैट एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार इसने ऐसा क्यों बिहेव किया, ठीक है. नॉट ओनली दिस, मोस्ट ऑफ अस हैव डेवलप्ड आवर ओन थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हमारी अपनी खुद की थ्योरी होती है ह्यूमन बिहेवियर की. वी वांट सम वर्कर, अगर हम चाहते हैं, जैसे बॉस लोग बड़े शाना पिट्टी होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे इससे अगर ज़्यादा काम करवाना है तो इसे डांटते रहो, ठीक है.
ठीक है। तो ऐसी सच पॉपुलर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच आर बेस्ड ऑन अ कॉमन सेंस, ठीक है, ये सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, इफ़ दे आर इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली. In fact, you will find out that the commonsensical explanations of the human behavior are based on the hindsight and explain very little. तो वो कहते हैं कि जो theories हम लोग अपनी बनाते हैं ना, based on a common sense, they are based on the hindsight. ठीक है. For example, if a friend you love, ठीक है ना, वो दूर हो जाता है, तो अब इस केस में दो sayings होती हैं. Either you will say out of sight, out of mind, और या तो तुम ये कहोगे कि distance makes a heart grow fonder. अब तुम इन दोनों में क्या कहोगे? दैट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग विद यू. ठीक है, सपोज अगर पुराना दोस्त चला गया, अब तुमको नया दोस्त मिल गया, तो तुम कहोगे कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. और अगर तुमको नया दोस्त नहीं मिला और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, तो तुम कहोगे कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. ठीक है, तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो थ्योरीज हम लोग बनाते हैं, यू नो, द बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस, they are actually based on the hindsight. मतलब it actually based on the kind of situations that are happening in your life, you know. ठीक है. हाँ. और इन सिचुएशंस में तुम देखो, ये सोचो कि जो एक्सप्लेनेशन निकलता है, मतलब तुम जो कंक्लूजन निकाल रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द इट फॉलोज द अकरेंस ऑफ बिहेवियर. ठीक है. कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट. हाँ. The psychology as a science looks for the pattern of behavior which can be predicted and not explained after the behavior occurs. ठीक है, तो ये एक उल्टी चीज़ हो गई. यहाँ देखो क्या हो रहा है कि कॉमन साइंस जो है इज़ बेस्ड ऑन द हिंडसाइट. मतलब जो भी आप बोल रहे हो वो उस चीज़ को देख के बोल रहे हो जो आपके साथ हो रहा है लाइफ में. ठीक है, मतलब द सिचुएशन हैज़ ऑलरेडी अकर्ड विद यू. ठीक है, नाउ यू आर कमिंग अप टू द कंक्लूजन. ठीक है, बट साइकोलॉजी इसका टोटल ऑपोजिट है. साइकोलॉजी क्या करती है, वो पढ़ती है. इट लुक्स फॉर द पैटर्न ऑफ बिहेवियर. इट विल लुक फॉर द पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रेडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर्स. ठीक है, लुकिंग फॉर पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स विच कैन बी प्रेडिक्टेड. पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. साइकोलॉजी जो है स्टडीज द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट कुड बी प्रेडिक्टेड. एंड नॉट द एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर्स. ठीक है, तो अगर देखो यार एक्सप्लेनेशन के बारे में ही है तो फिर कोई यूज़ नहीं है, बट साइकोलॉजी को अपने आप को एक साइंस बनाना है, तो इसलिए वो प्रेडिक्शन पे बहुत ध्यान देती है. ठीक है, तो वो एक सेट ऑफ पैटर्न, वो डेटा कलेक्ट करेगी, वो पैटर्न निकालेगी, फिर वो उसको प्रेडिक्ट करेगी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालेगी. तो यही काम है साइकोलॉजी का, विच इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द कॉमन सेंस थ्योरीज. The scientific knowledge which is generated by the psychology often runs against the common sense. ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि it is always against the common sense. One such example is a study which is performed by the Dweck. ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है Dweck which is 1975. Dweck ने कहा था कि वो मतलब कुछ बच्चों पे काम कर रही थी जो बहुत ही ईजिली गिव अप कर रहे थे व्हेन दे वर डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और द फेलियर. तो अब इसमें देखो कॉमन सेंस थ्योरी क्या थी. इसमें कॉमन सेंस थ्योरी ये थी कि पहले उन्हें आसान प्रॉब्लम दो. आसान प्रॉब्लम दोगे तो फिर मोटिवेशन होगा, और उस मोटिवेशन से दे विल बी एबल टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. तो उसने ऐसा परफॉर्म किया, बट रिज़ल्ट कुछ उल्टा ही आया. रिज़ल्ट ये आया कि जिन बच्चों को उन्होंने शुरुआत में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दी थी, ठीक है, और वो उस प्रॉब्लम्स को जब नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने उन बच्चों को समझाया कि यार तुम इन प्रॉब्लम को इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम सही एफ़र्ट नहीं लगा रहे हो. देयर इज़ अ लैक ऑफ एफ़र्ट. तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी आई, उनके अंदर परसिस्टेंसी आई, और फिर वो दे वर एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, एंड परसुएडेड देम नॉट टू गिव अप एंड कीप ट्राइंग. ठीक है, और ट्रेनिंग पीरियड जब ओवर हुई और जब उनको नया मैथ प्रॉब्लम दिया गया, तो ड्वेक ने जो स्टडी निकाली दैट वाज अगेंस्ट द कॉमन बिलीफ. ठीक है, उसने ये पता लगाया कि द पीपल हु सक्सीडेड, ठीक है, दोज पीपल हु सक्सीडेड बिकॉज दे वर गिवन ईजी प्रॉब्लम्स, उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप किया. दे गिव अप मच फास्टर व्हेन दे फेस्ड फेलियर.
then those people who are experiencing, who had the experience of both the success and the failure, because they were taught to attribute failure as the lack of effort, तो उन्होंने इतनी जल्दी गिव अप नहीं किया, क्योंकि उनका जो फेलियर था उन्होंने उसको माना कि इट वाज अ लैक ऑफ एफर्ट। और जिन बच्चों को आसान प्रॉब्लम दी जाती थी उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, ठीक है। और जिन बच्चों के पास जिन बच्चों के पास दोनों का सक्सेस और फेलियर दोनों का टेस्ट था, उनको कहा कि यार ये उनका लैक ऑफ एफर्ट है। तो ये देखो ड्वेक की स्टडी जो थी वो बिल्कुल ऑपोजिट चली गई 1975 की। There are many other common sense notions that you may not found to be true. Not too long ago it was believed in some cultures. अब जैसे कहा जाता है कि मैन ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वुमेन ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं, बट अगर एम्पेरिकल डेटा निकालें तो दोनों थ्योरीज, कॉमन सेंस थ्योरीज जो हैं वो गलत साबित होती हैं, ठीक है। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आप बहुत बड़े ऑडियंस के सामने करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट इट हैज़ बीन कंक्लूडेड एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो then you may actually perform better, because the large number of people actually help you out, the presence of the others help your performance। हाँ, अब देखो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजिस्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दे सिस्टमैटिकली एग्जामाइन द प्रपोजिशंस बेस्ड ऑन द डेटा, ठीक है। दे आर सिस्टमैटिकली एग्जामाइनिंग द प्रपोजिशंस विच आर बेस्ड ऑन द डाटा टू डेवलप द प्रिंसिपल्स, ठीक है, अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एंड द अदर साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो जो उनके पास डेटा है उस डेटा से दे आर मेकिंग द प्रिंसिपल्स ऑन द ह्यूमन बिहेवियर एंड अदर साइकोलॉजिकल फिनोमेना, बट वो उस डेटा को बहुत ही सिस्टमैटिकली एग्जामाइन कर रहे हैं एंड दे आर डेवलपिंग द प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखो एक नया टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब अभी तो देखो बहुत डिबेट चल रही थी, माइंड पे डिबेट चल रही थी, ब्रेन पे डिबेट चल रही थी, फिर उसका एज अ साइंस, एज अ नेचुरल साइंस, एज अ बायोलॉजिकल साइंस, एज अ सोशल साइंस, इस पर डिबेट हो रही थी, ठीक है। और फिर कॉमन सेंस थ्योरीज़ और जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ होती हैं उस पर डिबेट हो रहा था, ठीक है। और अब आता है एवोल्यूशन, साइकोलॉजी में एडवांसमेंट कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी जो है एज अ मॉडर्न साइंस, ठीक है, एज अ मॉडर्न साइंस बहुत हद तक इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न डेवलपमेंट्स, ठीक है। इट ग्रीव आउट ऑफ एंशिएंट फिलोसफी कंसर्न्ड विद द क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। We mentioned earlier that the formal beginning of modern psychology straight back to 1879 when the first experimental laboratory was established in the Leipzig, Germany by the William Wundt। हाँ, grew out of ancient philosophy। इसकी पहली लैबोरेटरी बनी थी, एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी इन द लेप्जिग जर्मनी बाय द विलियम वुंडेट। विलियम वुंडेट वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द study of conscious experience and wanted to analyze the constituents of the building blocks of the mind। Let's stop here. We will start the next topic in the next video. Thanks.